تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے کلاس کی شروعات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے انٹرویو کے حوالے سے ہسٹری کو ڈسکس کر لیا تھا، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہسٹری میں ہم اپنے پیشنٹ کے ایج کے حوالے سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اسی طرح سے ان کے ڈیولپمنٹل سٹیجز کے حوالے سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی کلچرل کنسیڈریشن ہیں، ان کے جو رسم و رواج ہے، طور طریقے ہے، اس کے حوالے سے ڈیٹا گیدر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسپریچول بیلیف کے حوالے سے ہم کیا کریں گے، ڈیٹا گیدر کریں گے، اور پریویس ہسٹری کے حوالے سے ہم ان سے ڈیٹا لیں گے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے کل ہم نے جو ہے ڈسکس کر لیا تھا. امید کرتا ہوں اس کی آپ کو تھوڑی بہت جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، آج جو ہے ہم اس سلائڈ سے کنٹینیو کریں گے. سو کہتے ہیں کہ if the client is 17-year-old, these struggles are normal and anticipated because these are two of the primary developmental tasks for the adolescent. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے پیشنٹ آ جائے اور ان کی ایج جو ہے وہ 17-year-old ہے، ٹھیک ہے، اور اس دوران ان میں مختلف قسم کے چینجز جو ہے آ رہے ہو، تو ظاہری بات ہے وہ ابھی بچے ہیں، ابھی اتنی وہ زیادہ عمر کے نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ڈیولپمنٹل چینجز جو ہے آنا یہ لازمی طور پر ان میں اس سٹیج میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو سٹیج نمبر سلائڈ نمبر 43 ہے یا 42 ہے میرے خیال سے. if the client is 17-year-old, these struggles are normal. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوں گے، یہ ڈیولپمنٹل چینجز ہمارے ساتھ نارمل ہوں گے. اسی طرح سے if the client is 35-year-old and still struggling with these issues of self-identity and independence, the nurse will need to explore the situation. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایسے پیشنٹ آ جائے جن کی ایج جو ہے وہ 35 ایئرز اولڈ ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ہیں، ابھی تک وہ اپنی جو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نہیں کر سکے، اور وہ ابھی تک جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر نرس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی جو سچویشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے، اور جاننے کی کوشش کرے کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا مسئلہ جو ہے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مزید آگے کہتے ہیں کہ the nurse must be sensitive to the client cultural and spiritual beliefs to avoid making inaccurate assumption about his or her psychosocial functioning. Many cultures have beliefs and values about person role in society or acceptable social or personal behavior that may differ from those of the nurse. کہتے ہیں کہ جب نرس اپنے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہو، پیشنٹ کو جو ہے پیشنٹ سے انٹرویو لے رہے ہو، تو انٹرویو کے دوران نرس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے اپنے پیشنٹ کے جو کلچرل اور جو اسپریچول بلیف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کیا کریں گے، ان سے ڈیٹا لیں گے. ٹھیک ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے کہ پیشنٹ کے جو کلچر اور اسپریچول بلیف ہے اس کو ایوائڈ کر کے، اس کو اگنور کر کے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پیشنٹ کی جو سائیکو سوشل فنکشننگ ہے اس کو بہت زیادہ کیا کرتی ہے، متاثر کرتی ہے. اور اسی طرح سے نرس اگر ان چیزوں کو جو ہے کنسیڈر نہ کرے، ان چیزوں کا خیال نہ رکھے، تو پھر جو ڈیٹا نرسز حاصل کرتے ہیں اپنے پیشنٹ سے، تو وہ ڈیٹا پھر افیکٹو نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بہت سارے ایسے کلچر بلیوز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بیس پر لوگ جو ہے اپنے معاشرے میں ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا ایک اپنا پرسنل بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ پرسنل بیہیویئر جو ہے یہ نرسز سے کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو نرسز کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ اپنے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہو، پیشنٹ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہو، کنسلٹیشن کر رہے ہو، تو کنسلٹیشن کے دوران نرسز جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے جتنے بھی کلچرل بلیوز ہے، جتنے بھی ان کے اسپریچول بلیو ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے، اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرے، ان کو کیئر دے، ان سے ڈیٹا گیدر کرے.
Western culture generally expect that as a person reaches adulthood, he or she become financially independent, leave home, and make his or her own life decision. In contrast, in some Eastern cultures, three generations may live in one household, and elders of the family make major life decision for all. कहते हैं कि अगर हम मगरबी कल्चर, मगरबी जो रस्म रवाज है, तौर तरीके हैं, उस पर नज़र डालें, तो वहाँ पर जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो वो फाइनेंशियली तौर पर, माशी तौर पर जो है अपने वालिदैन की जिम्मेदारियों से निकल जाते हैं, और फिर वो लोग जो है, वो बच्चे जो है, फिर उनकी खुद से जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खुद से अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को पालेंगे। इसी तरह से वो फिर अपने लाइफ के डिसीजन करने में खुद मुख्तार हो जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम मशरकी तर्ज ज़िंदगी को देखें, इस पर हम नज़र डालें, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं। पेरेंट जो है बच्चों की पैदाइश से लेकर बच्चों की शादियों तक के फैसले करते हैं, और इसी तरह से पूरे घर के जितने भी फैसले होते हैं तो वो उस घर के सरबराह जो है बजाते खुद करते हैं, और सारे लोगों को जो है उसको मानना होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कल्चरल डिफरेंसेस है जो कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर मिलेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना होगा, अपनी जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना होगा। इसके साथ साथ अगर दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अनदर एग्जांपल इज द असेसमेंट ऑफ आई कांटेक्ट। Western culture consider good eye contact to be a positive characteristic indicating self-esteem and paying attention. People from other cultures such as Japan consider such eye contact to be a sign of disrespect. इसी तरह से अगर हम मगरबी कल्चर के दूसरे एस्पेक्ट को देखें, जिसमें वो लोग, जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो बात करने के दौरान उस बंदे के साथ आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो इसको जो है वो अपने लिए रिस्पेक्ट समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है मेरी तरफ मुतवज्जे है और मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं। तो इससे जो है उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको इज्जत जो है वो महसूस होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम जापान की कल्चर को देखें, तो जापान में अगर आप किसी बंदे की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो इसको वो अपने लिए बेइज्जती समझते हैं, और वो इसको जो है अच्छा महसूस नहीं करते। तो बुनियादी मकसद मेरी बात का ये है कि हर एक एरिया का जो है अपना तो अपने तौर तरीके होते हैं, अपने कल्चर होते हैं, रस्म व रवाज होते हैं। तो नर्सेज जो है इन सारी चीज़ों पर गौर करेंगे, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए अपने पेशेंट को डील करेंगे, और अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर जो असेसमेंट प्रोसेस है वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव रहेगी, और हमें इफ़ेक्टिव डेटा जो है मिलेगा। ठीक है, लेते हैं। अब आ जाते हैं जनरल बिहेवियर एंड मोटर अपीयरेंस की तरफ। जनरल बिहेवियर एंड मोटर अपीयरेंस से मुराद ये है कि जब हम पेशेंट को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, पेशेंट के साथ हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो बातचीत के दौरान उनका जो रवैया होता है, ठीक है, उनका बैठने का जो स्टाइल होता है, उनका जो खड़े होने का स्टाइल होता है, ठीक है, उनकी जो ड्रेसिंग होती है, तो वो किस तरह की होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, इसको हम जनरल बिहेवियर एंड मोटर अपीयरेंस कहते हैं। तो जनरल बिहेवियर एंड मोटर अपीयरेंस में हम हाइजीन एंड ग्रूमिंग देखते हैं। हाइजीन से मुराद साफ सुथराई का ख्याल रख रहे हैं या नहीं, इसी तरह से उनकी हेयर स्टाइलिंग कैसी है, उन वो जो है अपनी पर्सनल ज़ाती ख्याल रख रहे हैं या नहीं, तो इसको कहते हैं हाइजीन एंड ग्रूमिंग। इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट ड्रेस, आया उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं तो आया वो ठीक है या नहीं, सही तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं या नहीं। इसके साथ साथ पोस्चर, पोस्चर से मुराद ये है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, या बैठने का जो अंदाज है, खड़े रहने का जो अंदाज है, वो किस तरह का है। ठीक है, आया वो किसी ऐसे स्टाइल को उन्होंने तो इख्तियार नहीं किया है जो कि जिसकी वजह से लोग इरिटेट हो। ठीक है, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ आई कांटेक्ट, आया वो बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो हमें
सुन रहे हैं या नहीं, ठीक है, हमें जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं या नहीं। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसी तरह से यूजुअल मूवमेंट एंड मैनरिज्म, उन अनयूजुअल मूवमेंट एंड मैनरिज्म, उनका जो मूवमेंट है, हरकत है, आया वो ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ किस तरीके से उनके जो मैनर्स है वो क्या है, ठीक है, उनको बैठने के आदाब का पता है या नहीं, बात करने के आदाब के बारे में उनको पता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ जब वो स्पीच कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो किस लहजे में बोल रहे होते हैं, किस तरीके से बोल रहे होते हैं, आया उनकी बातें जो है हमें समझ में आ रही होती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जनरल बिहेवियर और मोटर अपीयरेंस में इसको क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। The nurse assesses the client overall appearance and include dressing, hygiene, and grooming. Is the client appropriately dressed for his or her age, and whether does the client appear to be his or her stated age? The nurse also observes the client posture, eye contact, facial expression, and unusual tics or tremors. ठीक है, इसके साथ साथ he or she document observation and example of behavior to avoid personal judgment. अब जब नर्स जो है अपने पेशेंट से असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, असेसमेंट कर रहे हो अपने पेशेंट की, तो असेसमेंट के दौरान नर्स जो है वो अपने क्लाइंट की जो ओवरऑल अपीयरेंस है उसको भी क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, जिसमें पेशेंट की ड्रेसिंग स्टाइल आ जाती है, पेशेंट की हाइजीन्स आ जाती है, ठीक है, आया वो साफ सुथराई का ख्याल रख रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ उनकी ग्रूमिंग आ जाती है। ग्रूमिंग से मुराद ये है कि उनके हेयर स्टाइल किस तरह से, आया उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने हेयर को कंघी की हुई है या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो पर्सनल जो साफ सुथराई है उसका ख्याल रखा हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रूमिंग में आ जाती है। आया वो अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं या नहीं, तो ये सारी बातें किस में आती है, ग्रूमिंग में आती है। इसके साथ साथ इज द क्लाइंट अप्रोप्रिएटली ड्रेस फॉर हिज और हर एज एंड द वेदर, क्या पेशेंट ने जो कपड़े पहने हुए हैं तो आया उन्होंने जो है अपने एज के मुताबिक कपड़े पहने हुए हैं या नहीं, और वेदर के मुताबिक, मौसम के मुताबिक कपड़े पहने हुए हैं या नहीं। मतलब इस बात का ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि अब नॉर्मल होते हैं या जो कि मेंटली थोड़े से डिप्रेस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जो कि आम तौर पर सोसाइटी के लिए बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल होते हैं, या सोसाइटी माशरा जो है उसको बहुत अजीब तरीके से क्या करती है, सोचती है, उसको क्या करती है, कंसीडर करती है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो है सर्दी के मौसम में जो है गर्मियों के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गर्मियों के मौसम में सर्दियों के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके साथ साथ आया जो पेशेंट है, ठीक है, वो अपनी उम्र के मुताबिक जो है दिखाई दे रहे हैं या नहीं, या अपनी उम्र से छोटे नज़र आ रहे हैं या अपनी उम्र से बड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ द नर्स आल्सो ऑब्जर्व द क्लाइंट पोस्चर, क्लाइंट की जो पोस्चर है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें पेशेंट की जो आई कांटेक्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं कि पेशेंट जो है वो बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सिचुएशन के मुताबिक है या नहीं। इसके साथ साथ अगर किसी किस्म की अनयूजुअल मूवमेंट या इनवॉलेंट्री मूवमेंट उनकी बॉडी पार्ट्स में हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। टिक या ट्रिमर से मुराद ये है कि आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जब कोई शख्स जो है या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नर्वसनेस का शिकार हुए हो, तो उनके हाथ पैर जो है वो ऑटोमेटिकली हिल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिमर्स कहते हैं, ठीक है। ही और शी डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर टू अवॉइड पर्सनल जजमेंट, और इसी तरह से नर्सेज जो है असेसमेंट के दौरान अपने पेशेंट की इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हुए डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है असेसमेंट के दौरान, और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, करते हैं, ठीक है। ये हम किस में करते हैं, ये हम कंटेंट में करते हैं। इसी तरह से प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोसेस में
हाउ क्लाइंट इज थिंकिंग, क्लाइंट जो है वो किस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रोसेस में स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सेल्फ हार्म एंड सुसाइड अर्जेस, आया पेशेंट जो है वो अपने आप को नुकसान देने के बारे में सोच रहे हैं या पेशेंट को जो है सुसाइड के ख्यालात आ रहे हैं, तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। Common term related to the assessment of thought process and content include the following. Number one, circumstantial thinking. Circumstantial thinking से मुराद ये है कि term used when a client eventually answer a question but only after giving excessive unnecessary detail. Circumstantial thinking से मुराद ये है कि आप एक पेशेंट से एक सवाल पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में और वो आपको उस चीज़ के बारे में जो है इधर उधर की बातें कर रहा हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है फजूल बातें करने के बाद फिर आपको जो है उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझे कहते हैं कि सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग किसे कहते हैं, और मैं आपको सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग के बजाय मैं आपको बताना शुरू करूं कि आज जो है मैं बाज़ार गया था, बाज़ार जाने के बाद मैंने इस तरह के काम किए, फिर वहाँ पर मैंने खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद मैं वापस आ गया और फिर एकदम से मैं आपको कहता हूँ कि सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें आप एक बंदे से क्वेश्चन करें और वो आपको गोल मोल जवाबात देने शुरू कर दे और फिर आखिर में आपको आपके सवाल का जवाब दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कमस्टेंशियल थिंकिंग कहेंगे। सही है। इसी तरह से डिल्यूजन, डिल्यूजन किसे कहते हैं, डिल्यूजन मीन अ फिक्स फॉल्स बिलीव्स नॉट बेस्ड इन रियलिटी इज कॉल्ड डिल्यूजन, ठीक है, मतलब ये है कि आप जो है किसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जो कि हकीकत में वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं या आप फील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप जो है आपके साथ कोई बंदा जो है बात कर रहा है, आपको हौसला अफजाई दे रहा है, ठीक है, आप जो है आपको हौसला अफजाई आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उनकी बातों का जो मतलब है, ठीक है, उसको आप उल्टा लेते हैं। आप कहते हैं कि शायद इस बंदे का मुझसे कोई मतलब है, ठीक है, शायद ये बंदा जो है किसी मतलब के लिए मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है और इसका कोई मतलब है, ये मुझसे कुछ मांगने वाला है, तो इस वजह से ये मेरी इतना केयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो ये आपके जो फॉल्स बिलीव होते हैं, ठीक है, जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होते, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, ठीक है, फॉल्स बिलीव होते हैं, तो इसको हम डिल्यूजन कहते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज से मुराद एक्सेसिव अमाउंट एंड रेट ऑफ स्पीच कंपोज ऑफ फ्रेगमेंटेड एंड अनरिलेटेड आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा जो है बोल रहे होते हैं और आपके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, लेकिन वो ख्यालात जो है टॉपिक के मुताबिक नहीं होते, टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते और गैर ज़रूरी ख्यालात होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। इसके साथ साथ आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस से मुराद ये है कि क्लाइंट an accurate interpretation the journal events are personally directed to him or her, such as hearing a speech of ऑन द न्यूज़ एंड बिलीविंग द मैसेज हैड पर्सनल मीनिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप जो है आप दो नर्सेज जो है एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो और उनके करीब ही एक पेशेंट हो और वो पेशेंट जो है ऐसा सोचने लगे कि ये दो नर्सेज जो है मेरे बारे में बात कर रहे हैं और ये मेरे लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में जो है ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब आप अपने आप से बात कर रहे हो और दूसरा मतलब दूसरे लोग जो है उसको जो है अपने लिए ज़ाती तौर पर वो ले लेते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि शायद ये बंदा जो मेरे सामने खड़ा हुआ है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अक्सर औकात बचपन में आप लोगों ने इस तरह के सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया होगा जब दो मतलब तीन फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, और तीन फ्रेंड्स में दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हो और तीसरा फ्रेंड जो है वो दूर से उनको देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि शायद ये
दोनों फ्रेंड जो है मेरे बारे में बात कर रही है और मुझसे रिलेटेड शायद ये कोई बात कर रही है, डिस्कस कर रही है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, आइडिया ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं। सही है। लूज एसोसिएशन, लूज एसोसिएशन किसे कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग दैट जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर विद लिटिल और नो एविडेंट रिलेशन बिटवीन थॉट्स, ठीक है, इसका लूज एसोसिएशन मतलब यह है कि आप किसी टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हो और आगे एकदम अचानक उस टॉपिक को छोड़कर आप दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करना शुरू करें, उसको डिस्कस करना शुरू करें, लेकिन उसके हवाले से आपके जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, वो उससे मुंसलिक नहीं होते, ठीक है, मतलब इधर उधर की बातें आप करना शुरू करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, लूज एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। एसोसिएशन से मुराद किसी चीज़ के साथ आपका मुंसलिक होना, तो लूज एसोसिएशन से मुराद ये है कि आपका चीज़ों के साथ मुंसलिक रहना नहीं होता, बल्कि चीज़ों से आप जो है हट जाते हैं और फिर आप इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम लूज एसोसिएशन कहते हैं। अब आ जाते हैं टेंजेंशियल थिंकिंग की तरफ। व्हाट इज टेंजेंशियल थिंकिंग, टेंजेंशियल थिंकिंग क्या है, वंडरिंग ऑफ द टॉपिक एंड नेवर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, ठीक है, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज टेंजेंशियल थिंकिंग और आप मुझे टेंजेंशियल थिंकिंग के बजाय अपनी आज की जो टुडे आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपके जो आज के एक्टिविटीज़ थे उसके बारे में आप मुझे किस्से सुनाना शुरू कर दें कि आज हम मतलब सेंटोरस गए हुए थे, या हम जो है फीसल मस्जिद गए हुए थे, या हम जो है शाही क्या कहते हैं, शाही मस्जिद है या कौन सा मस्जिद है वहाँ गए थे और हमने जो है बहुत सेल सपाटे किए, और आप जो है मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल थिंकिंग कहते हैं। सही है। थॉट ब्लॉकिंग से मुराद ये है कि वो कंडीशन होती है जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं, आप पेशेंट से किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं, पेशेंट आपसे बात कर रहे होते हैं कि अचानक वो बात करना स्टॉप कर देते हैं और फिर उनके पास बात करने के लिए अल्फाज नहीं रहते और वो फिर बात नहीं कर पाते, तो इसको हम क्या कहते हैं, थॉट ब्लॉकिंग कहते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग abruptly in the middle of a sentence or train of thoughts sometime unable to continue the idea is called thought blocking, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके माइंड में एक आइडिया आई हुई है लेकिन आप उस आइडिया को जो है उसकी वजाहत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास अल्फाज नहीं मिल रहे हैं उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, थॉट ब्लॉकिंग कहते हैं। सही है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं, अ डिल्यूजनल बिलीव अदर कैन हियर और नो व्हाट द क्लाइंट इज थिंकिंग, ठीक है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक डिल्यूजनल बिलीव होती है जिसमें पेशेंट जो है वो ये सोचता है कि ये बंदा जो है मेरी सोच को चुरा रहे हैं, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ तो इस बंदे को उसके बारे में पता है और ये सब कुछ जो है मेरे बारे में जानता है, ठीक है, या इसने सब कुछ जो है मेरे बारे में सुना हुआ है जो कि हकीकत में इस तरह से नहीं होता, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ते हैं, थॉट इंसर्शन से मुराद ये है कि ये एक डिलूजनल बिलीव होती है, ये भी एक डिलूजनल एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें एक बंदे को जो है ये लग रहा होता है कि ये बंदा जो है मेरे जहन में जो है बातें डाल रहा है और मुझे जो है कहता है कि इस तरह से काम करो या ये करो या वो करो, ठीक है, मतलब मुझे जो है सिखा रहे हैं और मेरे साथ जो है कुछ गलत करने वाले हैं या मुझसे कुछ गलत करना चाहते हैं, तो इस तरह की जो डिल्यूजनल बिलीव होती है, ठीक है, जिसमें जो पेशेंट है वो दूसरों के बारे में सोचता है कि ये बंदा जो है मुझे बातें सिखा रहे हैं और मुझसे जो है कोई काम लेना चाहते हैं जो कि ठीक नहीं है, तो इसको कहते हैं थॉट इंसर्शन। इसके अलावा थॉट विड्रॉवल किसे कहते हैं, अ डिल्यूजनल बिलीव दैट अदर आर टेकिंग द क्लाइंट थॉट्स अवे एंड द क्लाइंट इज पावरलेस टू स्टॉप। थॉट विड्रॉवल ये वो डिल्यूजनल बिलीव होती है पेशेंट की जिसमें
وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ میرے خیالات کو جو ہے مجھ سے چرا رہے ہیں، میرے خیالات جو ہے وہ مجھ سے لے رہے ہیں، اور میں ان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، میں ان کو روک نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے جو بلیوز ہوتے ہیں، لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھاٹ وڈراول کہتے ہیں۔ ورڈ سیلیڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ تو آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ فلو آف انکنیکٹڈ ورڈز دیٹ کنوے نو میننگ ٹو دا لسنر، ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے بات چیت کر رہے ہو اور اتنے سپیڈ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، مکس الفاظ کو جو ہے مکس کر کے آپ جو ہے بول رہے ہو، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جو ہے، سننے والوں کو جو ہے آپ کے الفاظ کی سمجھ نہ آتی ہو، اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بے معنی رہے، ٹھیک ہے، آپ کے الفاظ کا مطلب جو ہے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر رہے ہو، تو اس کو ہم ورڈ سلیکٹ کہتے ہیں۔ assessment of suicide and harm to other. For the depressed or hopeless client, the nurse must determine if he or she has suicidal ideation or lethal plan. اگر آپ کے پاس ایسے پیشنٹ آ جائے جو کہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہو یا بہت زیادہ نا امید ہوئے ہو، ٹھیک ہے، تو نرس کو چاہیے کہ وہ اس پیشنٹ کے جو خیالات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو پلاننگ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور جاننے کی کوشش کرے کہ آیا پیشنٹ جو ہے کسی قسم کی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے۔ If the client is angry, hostile, or making threatening remarks about a family member's spouse or anyone else, the nurse must ask if the client has thought or planned about hurting that person. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ غصے کا شکار ہو، ٹھیک ہے، ہوسٹائل ہو، اور اسی طرح سے کسی فیملی ممبر کے بارے میں، کسی اسپاؤس کے بارے میں، اسپاؤس سے مراد ان کے جو بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی شخص ان کے فرینڈز وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، ان کے اس پیشنٹ کے جو خیالات ہیں وہ خطرناک ہو، ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو نرس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ سے جو ہے باتیں نکلوائے کہ وہ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کس پر ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، اور وہ کس بندے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ The nurse does so by questioning the client directly. What thoughts have you had about hurting؟ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جب کلائنٹ ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے نرس، تو نرس جو ہے ڈائریکٹلی ان سے کوشچن کریں گے کہ آپ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کس کو آپ جو ہے مارنا چاہتے ہیں، کہ واٹ از یور پلان، آپ کی پلینس کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے سوالات نرسز جو ہے اپنے پیشنٹ سے کریں گے، اور اسی سوالات کے ذریعے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ When a client makes specific threat or has planned to harm another person, healthcare providers are legally obligated to warn the person who is target of the threat or plan. اسی طرح سے اگر کلائنٹ پھر آپ کو جو ہے وہ بتائیں کہ میں اس بندے پر بہت زیادہ غصہ ہوں اور اس کو میں پہنچانے والا ہوں نقصان، تو پھر نرس کے پاس یہ لیگل اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، اس بندے کو وارن کرے، اس کو جو ہے پہلے سے خبردار کرے کہ یہ بندہ جو ہے، پیشنٹ جو ہے آپ کے بارے میں اس طرح کے جذبات خیالات رکھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے خبردار رہے، ٹھیک ہے۔ The legal term for this duty is duty to warn. اور اسی طرح سے نرسز جو ڈیوٹی پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ پیشنٹ کی جو اسپاؤزز ہے، فرینڈس ہیں، ان کو خبردار کرتے ہیں، تو اس کے لیے ٹرم یوز ہوتا ہے جس کو ہم ڈیوٹی ٹو وارن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ This is one situation in which the nurse must breach the client confidentiality to protect the threatened person. اور یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں نرس جو ہے پھر کانفیڈینشیلٹی کو، پرائیویسی کو مینٹین۔ اچھا جی، تو اب ہم آ جاتے ہیں سینسریم اینڈ انٹلیکچوئل پروسیس کی طرف۔ اس میں ہم اورینٹیشن کے حوالے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، کنفیوژن، میموری، ایب نارمل سینسری ایکسپیرئنس اور مس پرسیپشن، کنسنٹریشن اینڈ ایبسٹریکٹ تھنکنگ ایبلٹیز کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا پیشنٹ اورینٹڈ ہے یا نہیں، ان کی میموری نارمل ہے یا نہیں، ان کی جو پرسیپشن ہے وہ نارمل ہے یا مس پرسیپشن کا شکار ہوئے چیزوں پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں یا نہیں، یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ ایبلٹیز پیشنٹ میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔
सो का ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि जब आप पेशेंट को डील कर रहे हो और पेशेंट से आप पूछे कि इस टाइम आप कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और वो आपको उस एरिया का सही इंफॉर्मेशन आपको दे के मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, उससे आप कहे कि अब क्या टाइम जो है बज रहा है, मतलब अब जो है अभी जो है क्या टाइम है, और वो टाइम के बारे में आपको सही बताए। और इसके हवाले से आप उनसे पूछे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन के जवाबात अगर वो आपको सही देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम है, मतलब वो जो है सोचने समझने की कुव्वत जो है उनमें मौजूद है, चीज़ों को वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, चीज़ें जो है उनको याद है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन रिफर टू द क्लाइंट रिकॉग्निशन of person, place and time, date is knowing who and where he or she is and the correct day, डेट एंड ईयर, ठीक है। तो इसके हवाले से हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि वो कंडीशन जिसमें हम पेशेंट से प्लेस, पर्सन, टाइम के बारे में पूछते हैं, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, सही है। The order of person, place and time is significance। इसी तरह से पर्सन, प्लेस और टाइम की जो ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन अ पर्सन इज डिसओरिएंटेड, अगर बंदा जो है वो डिसओरिएंटेड हो, ठीक है, तो ही और शी फर्स्ट लूजेस ट्रैक ऑफ टाइम, अगर वो जो है नॉर्मल ना हो तो सबसे पहले वो टाइम को भूल जाएगा, मतलब वो फिर टाइम को इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा, आपको फिर नहीं बता सकेगा कि अब जो है क्या टाइम बज रहा है, ठीक है। तो टाइम की पहचान उनको फिर नहीं होगी, फिर इसी तरह से वो जगह को भूल जाएगा, उनको जगहों की पहचान नहीं होगी, और आखिर में वो अपने आप को भी भूल जाएगा कि मेरा नाम क्या है, ठीक है, मैं कौन हूँ। तो इस तरीके से वो जो है डिसओरिएंटेशन का शिकार हो जाता है। ओरिएंटेशन रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, और इसी तरह से ओरिएंटेशन, अगर बंदा जो है ओरिएंटेड है तो वो फिर रिवर्स ऑर्डर में होगा। सबसे पहले वो उसको अपने बारे में पता होगा, ठीक है, कि वो कौन है, इसी तरह से उनको जगह के बारे में पता होगा कि वो किस जगह पर अब मौजूद है, और आखिर में उनको जो है टाइम के बारे में भी पता होगा, कि अगर आप उनसे टाइम के हवाले से पूछे, डेट उनसे पूछे कि आज कौन सा दिन है, तो ये आपको वो सही सही बताएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा क्या है, ओरिएंटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम है, सही है। इसी तरह से मेमोरी, द नर्स डायरेक्टली assesses memory both recent and remote by asking question with verifiable answer, ठीक है। For example, if the nurse asks, do you have any memory problem? The client may inaccurately respond no, and the nurse cannot verify date. Similarly, if the nurse asks, what did you do yesterday? The nurse may be unable to verify the accuracy of the client responses, ठीक है। इसी तरह से मेमोरी में हम क्या करते हैं, मेमोरी में हम अपने पेशेंट की जो मेमोरी है, ठीक है, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसके हवाले से डेटा लेते हैं। मतलब सबसे पहले तो उनसे हम रिसेंटली उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, उन पर रिसेंटली जो गुजरा हुआ होता है, उसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं। इसके बाद उनसे हम पास्ट के हवाले से पूछते हैं, मतलब 1 महीने पहले उन्होंने क्या किया था या कहाँ पर थे, 1 साल पहले उनकी कंडीशन क्या थी। तो इस तरह की हम उनसे पास्ट के हवाले से क्वेश्चन करके उनकी जो मेमोरी है उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा जो है ये इनकी जो मेमोरी है वो नॉर्मल है या नहीं। Hence, question to assess memory generally include one such is। इसी तरह से जब हम मेमोरी की असेसमेंट करते हैं तो इसके लिए हम मंदरजा झेल किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट, मतलब मौजूदा प्रेजेंट हालात के हवाले से हम उनसे क्वेश्चन कहते हैं कि मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इसी तरह से उनसे पूछते हैं कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था। इसी तरह से उनसे पूछते हैं कि
किस मुल्क में आप रह रहे हैं, इस मुल्क का जो दारुल खिलाफा है वो कौन सा है। तो इन चीज़ों के हवाले से अगर वो आपको सही तरीके से आंसर दे, रिस्पॉन्ड दे और बिल्कुल ठीक आंसर दे, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे की जो मेमोरी एबिलिटीज़ है वो क्या है, नॉर्मल है।